તત્વ વિચારમાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંગ 128। ધર્મેચ્છક ભાઈઓ, વવાણિયા પ્રથમ ભાદ્ર સુદ છઠ 1946। ધર્મેચ્છક ભાઈઓ, પ્રથમ સંવત્સરી અને એ દિવસ પર્યંત સંબંધીમાં કોઈ પણ પ્રકારે તમારો અવિનય, અશાતના, અસમાધિ મારા મન વચન કાયાના કોઈ પણ યોગાધ્યવસાયથી થઈ હોય તેને માટે પુનઃ ક્ષમાવું છું। આ પત્ર કોને લખ્યું છે? અંબાલાલભાઈ, એટલે ખંભાતના બધાને? હા, ખંભાતના। પ્રથમ સંવત્સરી એટલે એનો અર્થ એમ થયું કે એ બંનેને માનતા હતા। પર્યુષણ એટલે હા, દરેક બે હોય, પણ આ અત્યારે આપણે કરીએ એ જ ને? હા, એ જ ને, આપણે અત્યારે જે મનાવીએ એ જ ને? તો પણ અત્યારે આપણે જે પર્યુષણ કરીએ છીએ એ જ પર્યુષણ આવ્યા હશે ને એમને? વાત એમ છે, હા, એ જ પર્યુષણ આવ્યા ને, ભલે 100 વર્ષ પહેલા આવ્યા પણ આ જ પ્રકારથી ને। તો પ્રથમ સંવત્સરી અને એ દિવસ પર્યંત એટલે કે સંવત્સરીનો દિવસના સુધી પહેલા સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારે તમારો અવિનય, અશાતના, અસમાધિ, 3 શબ્દ લગાયા છે। અવિનય, અશાતના અને અસમાધિ। અવિનય એટલે કે અનાદર, જેવો પર્યાય દ્રષ્ટિથી છે અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી છે એવો સામેવાળા પ્રત્યે આદર ન રહેવો, એનું નામ અવિનય કહેવાય છે। દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જુઓ તો બધા ભગવત સ્વરૂપ છે, એટલે કોઈ પણ જીવનો આપણે અનાદર ન કરી શકીએ। અને પર્યાય દ્રષ્ટિથી તો પણ એનો આપણે અનાદર ન કરી શકીએ। પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોવામાં ભેદભાવ પેદા થાય। કોઈ ભિખારી હોય, આપણને સ્વાભાવિક રૂપથી એના પ્રત્યે જેવો આદરભાવ, વિનયભાવ પ્રગટ થવો જેવો ન થાય। દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો બહારનો કર્મનો ઉદય જણાય અને અંદરથી એમ લાગે કે આ પણ ભગવાન જેવું છે, એટલે એને કોઈ પણ એવા શબ્દ ન કહેવાય કે જેનો અનાદર થાય છે। આદર એવી વસ્તુ છે કે જેને જે વસ્તુ જોઈએ, જેને જેવા પ્રકારનો વ્યવહાર જોઈએ એવા પ્રકારનો બાહ્ય વ્યવહાર કરવો, એનું નામ આદર છે। આદર અર્થ એવો નથી કે વિશિષ્ટ પ્રકારના શબ્દોનો ઉચ્ચારણ કરો એ જ નામ આદર છે। કોઈકને પ્રેમ જોઈએ તો એને, હવે નાનો છોકરો હોય એને તમે એકદમ વધારે આદરથી આવો, આપને પેલોનું, એને ભાઈ એને એ નથી જોઈતું, એને છે ને પ્રેમ જોઈએ છે, એને પ્રેમપૂર્ણ વર્તન કરવું એનો આદર છે। જેને જે પ્રકારની ઈચ્છા હોય એવા પ્રકારથી એના સાથે વર્તન કરો। માને તમે મા રૂપે વર્તન કરો એટલે તો એને એનો આદર લાગશે, કેમ કે માતૃત્વનો આદર છે।
ભાઈને ભાઈ રૂપે તમે સ્વીકાર કરો ને એનો વિનય કરો તો એને એમ લાગે કે આ ભાઈ જેવો મને રાખે છે. આપણે એમ વિચાર કરીએ, આપણે એમ કોઈનો ભાઈ નથી ને પણ તમે જીવ છો એટલે હું તમારું સન્માન કરું છું ને આવી વાતો ન કરવી. પત્ની હોય એને તમે એમ એકદમ મોટા મોટા શબ્દો કહો, આપ તો ભગવાન કે જैसे हो ने मेरे लिए पूजनीय हो, उसको पूजा नहीं करवानी, उसको तुम्हारा प्रेम चाहिए, पूजा नहीं चाहिए. उसको आप पत्नी की तरह आदर करो, पत्नी की तरह व्यवहार करो तो वो उसका आदर है. सामने वाला जैसा चाहता है वैसा करो, वो आदर है. एवं नहीं कि आपने एक मापदंड बनावी लीधो, ऐसा ऐसा ऐसे ही शब्द सबके लिए उपयोग करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं. गुरु प्रत्येना संबंध तो एने शिष्यत्व रूप आदर थाय, एने शिष्य बनीने आदर थाय छे. दरेक संबंधों ये जे संबंध है एना अनुसार केवी रीते वर्तन करवुं एनो आदर छे. जीवन में प्रेम अने आदर आ बे वस्तुओं साथे साथे चालवी जोईए. ज्यां प्रेम होय छे तो स्वाभाविक रूप थी आदर होय छे. तो अहींया कहे छे के कई अविनय थई गयो होय, अहींया तो परमार्थिक दृष्टि थी कहे छे कि परमार्थ रूप थी तो बधा भगवान जेवा छे, तो आपणे एने केवी रीते अनादर करी शकीए. एक मैं कोई की मने पूज्य कांजी स्वामी ने एक प्रसंग सांभळायो. कोई लोको एमने दर्शन करवा माटे आया हशे, तो त्यारे वरसादनो समय हशे, तो त्या पहला तो क्या पाका कोई रोड वगैरह तो होता नहीं, तो कीचड़मांथी चालीने आया हशे, तो एमना पगमां थोड़ो कीचड़ वगैरह लागेलो हतो. तो एम कहे कि आप थोड़ो कंईक कदाच घासमां पण चाल्या हशे कोई पण, तो पूछे कि आ तमारे पग पर माटी वगैरह लगे? हाँ, ये तो वरसादनो टाइम है ने एटले थोड़ो कीचड़ ने थोड़ो घास ने एम हतुं. तो एमणे कीधुं कि देखो, आप जिस पर चल के आए हैं ना, वो आपके कितने जन्मों के माता पिता हैं. उनके ऊपर चल के आए हो आप. वो सब जीव अपने माता पिता रहेंगे कि नहीं? और वो सब भगवान है, और भगवान के ऊपर पैर रख करके आओ, रोंद करके आओ. આપણે ક્યારેક ઘાસમાં ચાલતા હોય તો આ વચન યાદ આવી જાય ને. હવે બિચારા એકેન્દ્રીય जीव આપણી रिएक्शन કરી ना सके कहीं, पर आप जब पैर देते हो तो उसका मान मर्दन होता है. उसके अंदर मान नहीं, ऐसा नहीं है. आ एकेंद्रीय जीवो छे, एमने अंदर मान छे कि नहीं? क्रोध पण छे, मान पण छे, माया पण छे, लोभ पण छे, बधी कशायो एमना अंदर छे. आप उसका मान भंग करोगे, कोई पैर रखोगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है. ये पत्थर वगैरह जो अपन पत्थर पे बैठते हैं ना, उसमें जीवास्ति का होता है. जीव है कोई, उस पत्थर पर अपन बैठते हैं, उसका मान भंग होता है, पर अपन बच नहीं सकते हैं. पर मान भंग तो होता है. हम जानवरों की सवारी करते हैं, उनका मान भंग होगा कि नहीं? बच्चा अपने को, अपना छोटा बच्चा भी यूं कहते हैं ना अपने को, दादाजी को, कि आप घोड़ा बन जाओ, तो अपने को नीचे झुकना पड़ता है, घोड़ा बनना पड़ता है. कोई दूसरा कहे तो नहीं कर सकते ऐसा, आप झुक जाओ. वो देवों में आता है ना ऐसा कि जो अभियोग्य जाति के देव होते हैं वो वाहन का काम करते हैं. तो भी इंद्र आज्ञा देगा तो एरावत हाथी बनेगा. अब उसके ऊपर वो देव है, वो कोई जानवर नहीं है, परंतु उसको हाथी बनना पड़ेगा. और वो ठप्पे से, वो मस्ती से वो इंद्रदेव उसके ऊपर बैठ करके जाते हैं. तो अंदर अंदर तो कोसता ही है कि देखो मैंने कैसे कर्म किए हैं कि मेरे को देखो इसकी सवारी करानी पड़ती है मेरे को. चेतक के बारे में ऐसा आता है, महाराणा प्रताप का चेतक,
कि वो इतना अभिमानी था कि जब तक महाराणा प्रताप नहीं मिले तब तक उसने अपनी पीठ के ऊपर किसी को सवारी नहीं करनी थी। कितना बड़ा हो गया इसके बाद भी उस जिस मालिक ने उसको पाला है वो भी कभी सवारी नहीं कर पाया उसकी। और जब महाराणा प्रताप मिले पहली बार उसकी पीठ पे बैठे, उन्हीं को बैठने दिया हो कि मेरे लायक भी तो होना चाहिए, मेरी सवारी करने लायक भी तो होना चाहिए, मेरी सवारी हर कोई नहीं कर सकता। ये कौन सी कषाय है? मान कषाय। स्वाभिमान कह लो भले, पर वो मान कषाई सबके अंदर होती है। बहुत जीवन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, किसी का भी मान को ठेस न लगे, किसी के सम्मान को ठेस न लगे, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सबसे अधिक पीड़ा व्यक्ति को यहां होती है। आप उसको थोड़ा मारो पीटो डंडों से, वो कोई दिक्कत नहीं, पर अपमानजनक शब्द कह दिए अथवा अपमानजनक व्यवहार किया, बहुत बुरा लगता है। ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ कृपाळु देव तो એટલા આમાં સતર્ક હતા कि अपने कारण से किसी के मान को कोई ठेस लगे नहीं, सबकी बात का यथा योग्य आदर होगा और जो करने योग्य होगी वो होगी। तो કંઈક અવિનય જાણ્યા અજાણે થઈ ગયો હોય, वो कभी भी अपने अपने अनुयायियों को भी गुरु शिष्य की तरह नहीं मानते। सब ठीक है, अपना संबंध है, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे वगैरह, पर आप छोटे हैं ऐसा नहीं। कभी किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना हमारा। किसके ऊपर क्या अधिकार? हाँ, प्रेम है तो अधिकार है। सामने वाला चाहता है कि आप मेरे ऊपर अधिकार चलाओ तो वो प्रेम है, वो अधिकार भाव नहीं है। वो तो सामने वाले को अच्छा लगता है, सामने वाला का अच्छा लगता है तो वो अभिनय की बात नहीं। એટલે આ વસ્તુનું આપણી વાણીનો ખૂબ ખ્યાલ રાખવો પડે। અવિનય વાણીથી વધારે થાય છે। શબ્દો એવા હોવા જોઈએ કે સામેવાળાને શીતલતા પહોંચે। कोई भी व्यक्ति हो, अपने तो आश्रम में रहते हैं ना, अपने को अपने अपनी भूमिका के हिसाब से सब देखना चाहिए कि हम यहाँ रहते हैं तो हम सबका कर्तव्य एक। यहाँ कोई भी अजनबी आ जाए, ऐसा कोई भी हो तो किसी के मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वो उसका सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। भले थोड़ा बहुत गलत भी हो, कोई बात नहीं, परंतु अपने को बड़े बन जाना और उसको जैसे तैसे करके राजी करके भेजना। इस गेट में जो भी आए वो नाराज होकर नहीं जाना चाहिए, प्रसन्न होकर के जाना चाहिए, खुश होकर के जाना चाहिए कि नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले की गलती का एहसास कराना चाहते हैं, ये तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ है, परंतु हर एक व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास है। हम नहीं कराएं तो चलेगा। આપણને ઘણી વાર એમ હોય કે ભાઈ તમે આટલું બધું નિયમ તોડ્યું છે ને આ છે ને એટલે તમારી ગલતી છે, पर उसको अपनी गलती पता है, नहीं पता ऐसा थोड़ी है। और आप उसको इतना सारा बताओगे तो वो गलती मानेगा नहीं, उल्टा उसका मान भंग होगा, उल्टा आपके विपरीत हो जाएगा। और अगर आप सॉफ्टली उसके साथ व्यवहार करोगे तो उसको तुरंत फील हो जाएगा कि ये गलती की मैंने। किसी को भी अगर झुकाना है ना, आप झुक जाओ। और जैसे आप अक्कड़ रहे तो सामने वाला झुकेगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाला आपसे कम योग्यता वाला है। कम योग्यता वाला उसका अहंकार अधिक होता है। देखो एक बच्चा होता है, ये जिद्दे चढ़ी गयो ने આપણે તો મોટા છીએ તો કોને ઝૂકવું પડે?
बड़े को ही झुकना है आपको, वो नहीं झुकेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है और उसका ईगो अधिक है। उसका ईगो अधिक है इसलिए तो वो छोटा है। इस जगत में छोटे और बड़े का मापदंड करना है कि इस जगत में बड़ा कौन, पूजनीय कौन, आदरणीय कौन। तो जिसका अहंकार कम है वो बड़ा है और जिसका अहंकार अधिक है वो छोटा है। ये स्वाभाविक बात है और ये तो वितराग विज्ञान ही कहता है। अभी इसी में आएगा। नीच गोत्र का आश्रव कैसा होता है? तो कहते हैं कि जिसके अहंकार है वो अभिमानी व्यक्ति निरंतर नीच गोत्र का आश्रव करता है, वो निरंतर नीचे जा रहा है। ये घास फूस वगैरह ये जब देख रहे हैं ना अपन, ये सब अभिमानी थे। अभिमान करके वहां पैरों के तले रोंदे जा रहे हैं हम। और हमने भी अगर अपने किसी अधिकारों के कारण से अभिमान किया तो वापस वही स्थिति अपनी आ जाती है। बहुत विनम्रता से पेश आना चाहिए। और मैंने तो 15-16 साल का यह साधना का काल और उसके पहले का भी जो काल है उसमें मैंने एक चीज बराबर देखी कि, और कंक्लूजन मैंने अपने जीवन का निकाला, किसी को भी समझाने का प्रयत्न मत करो। किसी को भी कि तुम्हारा ये दोष है ऐसा एहसास करने का प्रयत्न मत करो। वास्तव में वो नहीं मानेगा, वो मानने को तैयार ही नहीं होगा कभी भी। मैं पहले सोचता था कि साहिब जी को लोग कहते कि हमारा कहीं भूल था तो बताओ। जो साहिब जी कभी किसी की भूल नहीं बताते, कभी किसी का दोष नहीं बताते। वो जान गए कि इस काल के जीवों की ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो एकदम विनम्रता से अपनी भूल आदि को स्वीकार कर सके, क्योंकि बढ़े हुए अहंकार के कारण से ही तो यहाँ जन्म लिया है। नहीं तो हम यहाँ कैसे जन्म लेते हैं? हमने कुछ न कुछ ऐसे काम किए इसलिए तो यहाँ जन्म लिया। इसलिए किसी को समझाने का प्रयत्न मत करो। किसी को किसी भी प्रकार से उसको तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। कोई बहुत पूछे तो बता देना कि हमको ऐसा लगता है। बाकी अगर आपने आगे होकर के सुझाव देने का प्रयत्न किया आगे, तो वो आपसे दूरी होगा। कुछ कुछ चीजें जीवन से सीखनी चाहिए। हम ही भूले करते हैं और हम भूल कर करके भी सीखते हैं। तो कंट्रोल रखें। घर में भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, वहां भी चुपचाप देखते जाओ आप, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हाँ, वो योग्य हो तो उसको 1-2 बार संकेत से वगैरह से कहना, नहीं तो टोका टोकी मत करो। टोका टोकी से हमेशा व्यक्ति दूर हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है। उससे लेट गो करते जाओ, प्रेम को कम मत होने दो। प्रेम होगा, अपने आप एक दूसरे का आदर बढ़ता जाए। तो यहाँ कृपाळु देव क्यारेक क्यारेक कड़क कहता, लघुराज स्वामी वगैरह, पर बड़ी पारमार्थिक बात हो। व्यवहार में क्यारेक कड़क होता, अभिनय नहीं करना। कभी कुछ चीजें थोड़ी सी चला लेना, अपने माइनस हो तो हो, सामने वाले क्यों चला लेना। ये रोजमर्रा के अनुभव होते हैं ना, इसलिए मैं जो साधु संतों के पास जाते हैं ना, वो हमेशा क्यों खुश होकर के आते हैं। वो इसलिए खुश होकर के आते हैं कि वो तुरंत उसके दोष को स्वीकार करके उसको गौण कर देते हैं। और सामान्य व्यक्ति है, वो पहले दोष को देखेगा क्योंकि उसकी बाह्य दृष्टि होती है ना। और साधु संतों का बड़ा विशाल हृदय का होता है। कोई बड़े महापुरुष होते हैं, उनके शिष्य का वर्तन और उनके वर्तन में भी बड़ा अंतर रहता है। वो जो शिष्य लोग होते हैं वो थोड़े ज्यादा कट्टर डॉगमेटिक होंगे, और वो देखो तो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे ये दिल बड़ा होता जाता है। बड़ा दिल,
કૃપાળુદેવ તો મહાન હતા. તો वो अविनय કોઈનો થઈ ગયો હોય. अभी हम क्या है कि कोई न कोई हमारे पास जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी के कारण से हमको किसी को कुछ न कुछ कहना पड़ता है, कहना ही पड़ता है स्वाभाविक रूप से, और उसमें सामने वालों को बुरा भी लग जाता है. ये भी मेरा अनुभव है यहाँ के सबके, और ज़्यादा अनुभव तो राजेश भाई, नितिन भाई, शरद भाई, विपिन, इनके ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि उनको तो कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है. परंतु हम निष्कषाय भाव से कहें और फिर भी बुरा लग जाता है, सामने वाले की योग्यता इस प्रकार है, इसलिए ये मिच्छामि दुक्कडम करना है. न चाहते हुए भी बुरा लग जाता है. पहले तो इतना सेवक भाव से अपन व्यवहार करें, विनम्रता से करें, पर इसके बाद भी जिसको लग जाना है वो तो लग ही जाता है. और कभी कभी हमारा भी उदय ऐसा होता है ना, अजागृति होती है, तो हमसे भी ऐसे स्वामीपने की तरह व्यवहार हो जाता है, तो तुरंत अपने को टोक लेना और बाद में मिच्छामि दुक्कडम कर ले. तो यहाँ इतने सालों से अपन साथ साथ जी रहे हैं, कभी कुछ कहना वगैरह हो गया है तो वो कह रहे हैं તમારી સાથે रहता તમારો कोई अभिनय થયો तो અમે મિચ્છામિ દુક્કડમ. फिर अशातना. अशातना हाँ, પરમ કૃપાળુદેવ આત્મજ્ઞાન એ વ્યક્તિ નાનપણથી એટલું આત્મજ્ઞાન એમના જીવનમાં તો કોઈ એનાથી કોઈ અભિનય થયો હોય એવું આપણને ખ્યાલ ના આવે. તો એમના જીવનમાં એ અભિનય માટે જે આલોચના ઘણી વાર છે ને, આ બધાને કંઈક કડક શબ્દમાં કીધું હોય અને ગુરુ શિષ્યના સંબંધ હોય તો કંઈક કહેવું પડે. અને ज्ञानियों की विशेषता है, दोष नहीं करते हैं तो भी माफी मांगते हैं. हो सकता है कि भूतकाल में किए होंगे, भूतकाल में हो गए होंगे, या हो सकता है भविष्य में हो. सबके लिए ज्ञानी की विशेषता, वो हमेशा विनम्र बना रहेगा. विनम्रता उसका प्रथम गुण है. नहीं किए दोष तो भी मिच्छामि दुक्कडम, ये तो उनका बड़प्पन है. और उनको ढूंढोगे तो आपका उनको कोई दोष नहीं मिलेगा. क्योंकि તમે શા માટે એમ કહો છો भाई, आप तो वर्तमान जीवन देख रहे हो, हम वर्तमान जीवन नहीं देख रहे हैं, हम तो पीछे की परंपरा भी तो देख रहे हैं. हमने आपको कितना परेशान किया वो हमको पता है. એટલે कैसे अंतर्ज्ञानથી स्मरण करता वो आगे आएगा. हमने उसको अपना नौकर भी बनाया, हर व्यक्ति को अपना नौकर भी बनाया, उसको डांटा भी है, फटकारा भी है, मारा भी है, पीटा भी है, घर से बाहर भी निकाल दिया है, धक्के भी मारे हैं, अपशब्द भी कहे, क्या क्या नहीं किया हमने. सबको एक दूसरे के साथ, सबके साथ कितनी दुश्मनी कर रखी है. हम कितनी बार एक दूसरे के नारायण और प्रतिनारायण हो चुके. ये सब पीछे का, क्योंकि मुक्त होना है तो पीछे का भी देखना पड़ता है ना. तो ये अविनय, अनादर. जो आप हैं हमने आपको स्वीकार नहीं किया, आप भगवत स्वरूप है, हमने आपको स्वीकार नहीं किया. हाँ, प्रश्न है. माइक चालू करो. આપે કહ્યું કોઈનો દોષ ન બતાવવો, એ આપણા આશ્રય હોય, આપણા પરિવારનું, આપણો સન હોય, આપણો પોતરો હોય, એ ભૂલ કરે તો એની ભૂલનો અહેસાસ તો થોડો કરાવવો જરૂરી ખરો કે કેમ? કરાવો જો એ માનતા હોય તો. એ નહીં માને હું ચોક્કસ કઈ નહીં જોયો તમને જ ખબર પડશે. ये तो कुछ बातें सिद्धांत अपेक्षा अच्छा है
कि उसको कहना चाहिए, डांटना भी चाहिए, सब करना चाहिए, पर कह के देखो इसका परिणाम क्या आता है। प्रैक्टिकल करो। हाँ, प्रैक्टिकल करके देखो। अगर आपके पुण्य का उदय है और सामने वाले की भी तथारूप योग्यता है तो आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आपका प्रभाव नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है, आप कितना भी कहो, सामने वाले की योग्यता नहीं है, आप कितना भी कहो, तो आपको अपने को ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए। पर बार बार करेंगे तो उसका रिजल्ट उल्टा आएगा। यहां तो सबको चलेगा, चाल से, भाव से, गम से, भाव से। ये बधा मतलब तूने, अरे यार मेरे से ऐसा, और कोई बात नहीं, जो हो गया सो। खून करके आ जाए, किसी की हत्या करके आ जाए, तो भी इसको हो गया ना, कोई बात नहीं, अब आगे क्या करना ये देखो। पहले उसको डांटो मत, तूने ये किया, मैं ये बाहर निकल जा, ऐसा। अब आगे क्या करना है ये सोचो। हो गया तो हो गया, उसका क्या रोते रहना रहा, अब नहीं करना। तो ऐसे स्वीकार करना सीखे। वो आ गया है खून करके, इसलिए तो आपके पास आया है। इसलिए कोई महात्मा पुरुष कोई भी इसको दोष निवेदन करने के लिए आता तो ऐसा नहीं कहते शा માટે કર્યું भाई थे, मारे पास आवे छे, अब हूँ थोड़ा बचाओ, ऐसा नहीं है। तुम दोष किया, हमारे पास आओ, कोई बात नहीं, तुम स्वीकार कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब इतना इतना ध्यान रखना, बस उसको आदर के साथ। अशातना, अशातना का मतलब क्या होता है कि किसी को हमने संक्लेशित किया। असाता कहते हैं, असाता दुख देना, हाँ, कष्ट दिया है अपना ने। तो कष्ट देते हैं अपन, मानसिक कष्ट देते हैं अपन, शारीरिक कष्ट देते हैं अपन, अलग अलग प्रकार से कितने प्रकार के क्लेश होते हैं। तो असाता पहुंचाई है। अभी इसी में सूत्र आएगा, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये सारी चीजें आएंगी। ये असाता वेदनी कर्म का आश्रय। हम दूसरों को दुखी करते हैं अथवा स्वयं को दुखी करते हैं, दूसरों को संतापित करते हैं अथवा स्वयं को संतापित करते हैं, तो ये असाता वेदनीय का आश्रय होता है। असाता हमने कैसे कैसे पहुंचा इस व्यक्ति को, तो उसके साथ जैसा योग्य साता पहुंचे ऐसा व्यवहार नहीं किया, और असाता पहुंचे इस प्रकार से व्यवहार किया। अब अपना बच्चा है, हमने उसका बराबर ध्यान नहीं रखा, वो आपके संरक्षण में, उसको तो पता नहीं है कि ये खाने से ये होता है, ये नहीं खाने से ये नहीं होता है। अब आपको ही विवेक रखना है, आपको इसका सारा ध्यान रखना है, जब तक कि वो समझदार नहीं हो जाए। आपके पास आए, आप गुरु हैं, तो उनको क्या खाना क्या नहीं खाना ये सब ध्यान रखो, कौन सा कर्म करना कौन सा कर्म नहीं करना ये सब ध्यान रखो। अपनी वाणी से भी किसी को असाता न पहुंचे, अपने मन से भी किसी को असाता न पहुंचे। हमारा मन जब संक्लेशित होता है ना, तो सामने वाले में भी संक्लेश पैदा हो जाता है। अभी यहां बैठा बैठा कोई ऐसे रौद्र ध्यान करे, लोग हिंसा का वगैरह का ऐसा, तो सबके मनों में एक रौद्रता आ जाएगी। उसके कारण से इस पूरे वायुमंडल में रौद्रता आ जाएगी। किसी हिंसक व्यक्ति, 10 हिंसक व्यक्ति हैं, आप उनके पास जाके बैठो, आपके अंदर अपने आप हिंसा के परिणाम आ जाएंगे। वो कुछ कह नहीं रहे तो भी अपना आप हिंसा के परिणाम आ जाए। क्यों? क्योंकि उसका मन, वो मनोवर्गणाएं हैं, वो संक्लेश वाला वातावरण पैदा करती है। तो अपने मन में भी संक्लेश नहीं करना, इससे भी हम दूसरों को कष्ट पहुंचा। हम सोचे मैं तमने शू कीधु, कहीं कीधु छे? आप नहीं कह करके भी मन से ही आप उसके प्रति दुश्मनी वगैरह जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम शत्रु, हाँ, आभा मंडली ऐसा हो जाता है। हम देखते हैं ना, किसी को अपने को वो प्रिय लगता है ना, उसको देखते तो हमको अच्छा लगता है, पास में जाने की इच्छा होती है। और
जिसके मन में हमारे प्रति आदर नहीं है, कोई दुर्भावना है, तो उसके पास जाने की इच्छा नहीं होती अपने को। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है ना, मनोवर्गणा है, वो मिलती नहीं, वो दूर करना चाहती है उससे। नहीं, इनके पास नहीं जाना। और बैठा भी दिया तो यहां से कब जाऊं ऐसा होता है। उस वातावरण में अपन रह सकते हैं नहीं। भीम और दुर्योधन को एक जगह बैठा हो, कितनी देर बैठेंगे? बैठ ही नहीं सकते हो। कभी कब जाऊं ऐसा। क्यों? दोनों के मन ही नहीं मिल रहे हैं, संक्लेश पैदा हो रहा है। और एक दूसरे के मन मिलते हैं, हाँ, बहुत होता है। इसलिए सबके साथ मन मिलाने का सबसे अच्छी साता पैदा करने का उपाय है, आप अपने मन को ठीक करो। किसी के प्रति किंचित भी दुर्भावना मत रखो। हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा इनके पास जाते हैं, जाकर बैठेंगे, थोड़ी शांति मिलेगी। और मन में अगर दुर्भावना है तो आपके पास कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मिल नहीं रहा है मामला। शरीर पास में बैठे हैं, मन नहीं मिल रहा है। तो कोई पण प्रकारनी अशात ना पहोंचाड़ी होय। एक कृपालुदेव ने प्रवचन करता था, तो मन की बात हुई ना, मैं भी प्रेरक प्रसंग पढ़ रहा था, उस प्रसंग में आया तो एक घटोज भाई करीने था, घटोज भाई करीने नाम सांभळ्युं छे। तो एमने कृपालुदेव प्रवचन करता ने वच्चे उभा थया, तमे गृहस्थी छो, આવી આવી મોટી મોટી વાતો કરો છો, તમે સાધુઓને માનતા નથી, તમે અજ્ઞાની છો, અને इतना सारा कषाय, बहुत अधिक कषाय किया। પછી કૃપાળુદેવ રૌદ્ર ધ્યાન, પછી કૃપાળુદેવ બીજા હતા ને એમને સામે જોઈને, દેખો આ અનંત અનુબંધી કષાય છે। અનંત અનુબંધીની કંઈક વાત ચાલતી હશે એટલે પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ મળ્યું અમને કે આ અનંત અનુબંધી કષાય છે, એટલા પ્રેમથી કીધું એમને। પછી પેલા ભાઈ તો ગુસ્સામાં જતા રહ્યા। પછી પાછળથી કૃપાળુદેવ કીધું કે તમે એમની ચિંતા ન કરતા, એમને આ જે ગલતી કરી છે એ ફીલ થશે અને મોક્ષ માર્ગ ઉપર લાગશે। આ જન્મમાં લાગશે, थोड़ा ज वक्त पछी लागसे। कारण क्या? कृपालुदेव के मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं था। अगर उस समय उनके मन में दुर्भाव आ जाता तो उसको कभी फील नहीं होता हो। क्यों? क्योंकि अब दोनों के मन टकराते। એટલે કૃપાળુદેવના મનમાં પણ એના પ્રત્યે એક અભાવ पैदा થઈ જતો। उन्होंने नहीं होने दिया। अपनी तरफ से उन्होंने अपने आप को बहुत स्वच्छ रखा। પછી એક મોટી સભામાં ઘટોજભાઈ પછી સ્વીકાર કર્યું કે કોઈ જ્ઞાનીની વાત ચાલતી હતી, એમાં સ્વીકાર કર્યું કે મેં રાયચંદભાઈ પ્રત્યે આવા આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો અને ખૂબ જ મને એટલા રડ્યા અને ખૂબ જ ફીલ થયું કે મેં એક કોઈ જ્ઞાનીની વિરાધના કરી નાખી છે। અને તે દિવસથી સવળો થઈ ગયો। કારણ એક તરફા સ્વચ્છતા હતી, મન બરાબર હતું। એટલે આપણે કોઈ સાથે કંઈક એવું અનબન વગેરે થઈ જાય તો આપણે એક તરફથી બરાબર સ્વચ્છ રહેવું, આપણી તરફથી જરાય અભાવ પેદા ન થવા દો, પછી તો ઓટોમેટિક થતું જશે। ધીમે ધીમે હવે તમે વેટ કરો, મૈત્રી ભાવ સ્થાપિત કરીને તમે એનો પ્રતીક્ષા કરો। તમે વારંવાર ઘડીએ ઘડીએ વિચારો નહીં કે યાર હું તો એમના પ્રત્યે કંઈ વિચારતો નહીં, તોય મારા પ્રત્યે આમ રાખે છે, પેલું કરે છે, આ કરે છે, એમ ન વિચારો, એની પ્રતીક્ષા કરો। તમે ભાવ કર્યો છે ને, જેવી પ્રતીક્ષા કરો એવો તમારો ઓટોમેટિક એ ભાવ પૂરો થશે। એનો સમય પાકવા દો તમે, એટલા સમય તમે મધ્યસ્થ થઈ જાઓ। किसी से भी मैत्री वगैरह का संबंध बिगड़ गए तो अच्छे बने उसकी भी आकुलता मत रखो, अपनी तरफ से आप अच्छे बनते जाओ।
पॉजिटिव होते जाओ, और सामने वाला हो सकता है उसका उदय तीव्र तो और नेगेटिव होता जाएगा। पर आपने एक बार पॉजिटिव हो गए और वो भाव करके छोड़ दो कि मुझे भाई सकारात्मक रहना है, अब धीमे 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 काल पकेगा और ऑटोमेटिक उसको एक दिन फील होगा और मामला सब ठीक हो जाए। आकुलता नहीं रखनी किसी की, हमारी तरफ से हम ठीक है, अब समय के हिसाब से छोड़ दो। हमको हर चीज की आकुलता हो जाती है। भाव किया और उस भाव को करके छोड़ दिया, अब समय के हिसाब से जो होना वो। तो अशातना कष्ट अगर हमारे से किसी को पहुंचाए तो हम माफी चाहते हैं। और असमाधि, हमारे कारण से किसी को अगर कोई संकल्प विकल्प हुए, असमाधि इसको कहते हैं। संकल्प विकल्प એટલે કે સમાધાન ન થયું, અસમાધિત ચિત્ત, સંકલ્પ વિકલ્પ થયા હોય, સંકલ્પ વિકલ્પથી રહિત થવું એનું નામ સમાધિ છે, અને સંકલ્પ વિકલ્પ છે તે અસમાધિ છે। એટલે આપણા કારણથી કોઈકની વિકલ્પ થતા હોય, અને ઘણીવાર આપણા વ્યવહારથી થતા જ હોય બીજાઓને વિકલ્પ, तो कहते हैं कि मेरे कारण से अगर आपको कोई विकल्प हुआ हो, मेरे किसी प्रवृत्ति से आपको विकल्प हुआ हो, मेरे किसी वचन से आपको कोई विकल्प हुआ हो, मेरे किसी विचार से आपको विकल्प हुआ हो, तो हम हाथ जोड़ के मारा मन वचन कायाना कोई पण योगाध्यवसाय थी, मन वचन कायाना योग अने अध्यवसाय एटले अहींया कषाय भाव छे, तो होय तो तेने माटे पुनः पुनः क्षमाવું છું। आ अंतःकरण असमाधि, हाँ आकुल थया होय, संकल्प विकल्प हो तो ऑटोमेटिक आकुल ज थाय ने, बीजुं शुं। तो આપણે સંસારના, આ તો કૃપાળુદેવ બધા માટે, આપણે સંસારના જીવો પ્રત્યે અને આપણે આસપાસ જે રહેતા હોય અથવા ભૂતકાળમાં રહ્યા હતા, ભવિષ્યમાં રહેવાના છે, એ ત્રણેય માટે આપણે કોઈક અવિનય થઈ ગયો હોય, અસાધના થઈ ગયો હોય, અસમાધિ થઈ ગયો હોય, તો આપણે બે હાથ જોડી અને મિચ્છામી દુક્કડમ કહીએ। અને ફરીથી પણ, કેમ કે જ્યાં સુધી આ કર્મ સહિત અવસ્થા છે ત્યાં સુધી કાંઈક ને કાંઈક પ્રવૃત્તિ કરવી જ પડશે, અને ક્યારેક ક્યારેક થઈ જશે, તો એનાથી એડવાન્સમાં પણ આપણે એને માફી માંગીએ છીએ। એવો ભાવ રાખીને જીવીએ તો આપણી જાગૃતિ પણ રહેશે અને હંમેશા ચિત્ત નિર્મળ રહેશે। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तद्ध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज, हो प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय, शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।